Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National. So, like yesterday, today also, exam is going on very smooth. So, first shift of today is over. The candidate participated in the examination with joy, anxiety, tension in large numbers. In number of centers, there was almost more than 90% attendance. So, candidates took this challenge head on because job is very important. If exams will not happen, we will not get the job. The candidates understood the basic postulate. It is in interest of everyone that exams should happen. If exams are postponed or not being allowed to be done on scheduled dates, it can affect the entire system of examination throughout the year, because every week some exam is lined up. So if one exam is postponed, it will affect the other examination. So candidates took it in a positive spirit. They have decided that we will participate in the exam despite problems like non-availability of transport and other facilities. They shed the fear, and ultimately the turnout in the exam is above expectation. Now you are done with the exam. Some people might have attempted high questions, some people might have attempted lower number of questions. There may be rumors that cutoff will be this, cutoff will be this. A piece of advice to each one of you: don't be carried away by the false cutoff predictions. Simply concentrate on preparation of main examination. Whatever is your attempts, treat that you are going to appear in main examination, and there is no harm preparing for main examination, because that preparation will help you in other exams also. By today night, I will be posting a video where we will try to figure out what is the performance of various candidates and what can be the probable number of attempts that will help us to sit in main examination. Till now, 3,688 candidates have reported their performance along with their state in the comment column of various videos plus through WhatsApp. If you have appeared in the first shift, I will request you kindly post your attempts as well as state in the comment column of this video. This will help us to garner a good database, and from that database we can have insight what is likely to happen in the result. So my appeal to each one of you is concentrate on future. That means start preparation for main examination from today itself. Take few minutes rest and then you charge yourself and start. From today I have started how you should prepare for main examination series. 35 days are left. We have to utilize each and every day. Daily I will be uploading one video for this preparation. But if you are planning to prepare for office assistant exam that is scheduled next week, you can devote 1 week on that also. This is your choice. So for that also separate series will be running where I am advising how to prepare for office assistant. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. तो आज एक बार फिर सफलतापूर्वक फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो गया. कल 5 शिफ्ट में ये एग्जाम संपन्न हुआ. जो लोग एग्जाम देना चाहते थे, एग्जाम के लिए आतुर थे,
उन्होंने उत्साहपूर्वक इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। कुछ लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए और कारण भी ऐसे थे जो उनके बस में नहीं थे। कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, कहीं पर कुछ और कारण थे। उन लोगों के लिए भी ये सलाह है कि अभी बहुत एग्ज़ाम आने वाले हैं, अपना दिल नहीं तोड़ना है, उन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है। एग्ज़ाम होना सबके लिए अच्छा है। अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे नौकरी नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम नहीं होंगे या पोस्टपोन होंगे तो जो सारा शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर वो डिस्टर्ब हो जाता तो काफ़ी दिक्कत आती बेरोज़गार लोगों को रोज़गार प्राप्त करने में। तो जैसे भी IBPS ने डिसीजन लिया वो सबके हित में ही है। आल्दो कुछ गलतियां भी हैं IBPS की। एडमिट कार्ड उसको 15 दिन पहले या 1 महीने पहले निकालना चाहिए था, उसने गलती की है 4 दिन पहले निकाल कर। पर फिर भी हमें ये मानना पड़ेगा, इतनी विपरीत परिस्थितियों में एग्ज़ाम करवा देना, सुरक्षा पूर्वक एग्ज़ाम करा देना और कैंडिडेट्स के सेटिस्फेक्शन के अनुसार एग्ज़ाम करा देना कोई आसान काम नहीं है। कमियां भी होती हैं, पर अल्टीमेटली यदि लोगों को रोज़गार मिल जाता है, यदि लोग अपना रोज़गार लेने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अच्छा ही माना जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि आपने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया। अब एग्ज़ाम में हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई हो सकती है मॉडरेट गई हो। हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार र्यूमर्स आ जाते हैं, इतना हाई कट ऑफ जाएगा, उतना हाई कट ऑफ जाएगा, उससे कई लोग निराश हो जाते हैं, तैयारी छोड़ कर बैठ जाते हैं। आपको याद होगा पिछले वर्षों में भी कई बेतुके कट ऑफ्स बताए गए। मैंने हमेशा आपको एक रीज़नेबल कट ऑफ, कई बार बड़ा लो कट ऑफ भी बताया। उसमें कई लोग निराश थे और कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा हुआ। और जिन लोगों ने मेरा कहना माना और मेंस की तैयारी करते रहे और वो अचानक उनको पता लगा वो प्रीम पास कर गए हैं, वो आगे निकल गए। तो आपने मेंस की तैयारी करते रहना है, तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये निराश होकर नहीं बैठना कि आज मेरी इतनी कम अटैम्प्ट है, पता नहीं मैं प्रीम पास होगा कि नहीं होगा। ये किसी को नहीं पता होता कौन प्रीम पास कर जाएगा। इसलिए आपने मेंस की तैयारी करते रहना है। आज से हमने वो सीरीज़ भी शुरू कर दी है, मेन की कैसे तैयारी करनी है। सिर्फ 35 दिन हमारे पास बचे हैं, इन 35 दिनों का भरपूर फ़ायदा उठाना है। उस वीडियो को आप देखेंगे और उसके अनुसार तैयारी शुरू करिए। यदि आप ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जो अगले हफ्ते है, तो 1 हफ्ता उसके लिए भी आप डेडिकेट कर सकते हैं। उसकी तैयारी कैसे करनी है उसकी सेपरेट वीडियोस हमारी चल रही हैं, उसको आप देखेंगे। इसके अलावा जो लोग आज फर्स्ट शिफ्ट में अटैम्प्ट करके आए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अटैम्प्ट आप इसके कमेंट कॉलम में डाल दीजिए स्टेट के साथ। अभी तक 3688 व्यक्तियों ने हमें ये डेटा प्रोवाइड कर दिया है। जितना अधिक डेटा होता जाएगा उतना हमारा एनालिसिस अच्छा होगा, उतना हम ज़्यादा गहराई से देख पाएंगे कि अधिकांश लोगों ने क्या अटैम्प्ट किया। अपना जो भी आप अटैम्प्ट इसमें बताएंगे ईमानदारी से बताएंगे, गलत डेटा मत दीजिए, आपके हित में ही है। तो सब लोग कोऑपरेट करेंगे और एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आगे एग्ज़ाम्स होंगे, हमें कड़ी मेहनत करते रहना है। भगवान ने चाहा तो आपको इस साल नौकरी ज़रूर मिलेगी, ये सोचकर हमें आगे बढ़ते जाना है और बिल्कुल भी अपना ध्यान पढ़ाई से नहीं हटाना है। एग्ज़ाम होंगे तभी नौकरी मिलेगी, ये वाक्य हमेशा याद रखना है। कुछ लोगों को निराशा हो सकती है कि एग्ज़ाम क्यों नहीं पोस्टपोन हुए। इस निराशा को अपने मन से निकाल दीजिए। हो सकता है किसी का एक ये मौका चूक भी गया हो, उसको भी अब इस निराशा को मन से निकालना है। उसको खुश होना चाहिए कि अगले हफ्ते अगला एग्ज़ाम है, ऑफिस असिस्टेंट का है, उसके आने वाले हफ्ते में IBPS PO के एग्ज़ाम है, उसके आने वाले हफ्ते में IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम है। हमें जो अवसर हैं हाथ में उन पे दृष्टि रखनी है, हमें उन बातों को भूल जाना है कौन सा मौका मेरा चूक गया है।
सारे मौके हमें नहीं मिलते हैं, जीवन में कई मौके हमारे जरूर छूटते हैं। उसका अफसोस नहीं करते रहना है, आगे बढ़ना है, आने वाले अवसरों को पकड़ना है, उनके लिए मेहनत करनी है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि और लोगों को भी नौकरी लगे, मुझे भी नौकरी लगे। सबका हित सोचना है, सबके अच्छाई के लिए सोचना है। नौकरी उतने ही लोगों को मिलनी है जितनी उसमें वैकेंसीज है। अगर मुझसे कोई चीज़ छूट भी गई है, उसको अफसोस मनाने की बजाय अब मुझे मुख्य धारा में फिर जुड़ना है और अपने आने वाले एग्जामों पर ध्यान देना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।